of resources. The resources can be divided as individual, community, national and international resources. This is also another important classification of resources. तो बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज की. इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच आर ओन्ड प्राइवेटली by individuals. For example, I am owning an orchard of land, I am owning a piece of land. This piece of land becomes my private resource or it is an individual resource. उसके बाद हम community, ठीक है, community resources are owned and accessible to all the members of a community. For example, एक गांव में एक well है, that's a well which belongs to the whole of village, so it is a community resource. ऐसे एक public park है, it is a community resource. It's not owned by a particular person but it is owned by a community और ग्रुप ऑफ पर्संस. उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्स की. वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल रिसोर्स होता क्या है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज विच आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन आर नेशनल रिसोर्सेज. सो इफ यू टॉक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल ही इज ओनिंग अ प्राइवेट रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्चर्ड और अ पीस ऑफ लैंड, technically it is also a national resource because it is within the political certain times the government, it can use the private properties of individuals as well in the interest of public. So technically all the resources, whether they are individual or community resources within the political boundaries of the nation, they are the national resources. So all the resources within the political boundaries of a nation are national resources. पॉलिटिकल बाउंड्रीज में एक तो आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आती है, ठीक है, एक तो इसमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आती हैं और इसमें आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं. टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? टेरिटोरियल वाटर्स आर द वाटर्स विद इन 12 nautical miles from the baseline. ठीक है, से दिस इज द coastline of India, so within 12 nautical miles the waters, they are known as territorial waters, and these territorial waters, इनमें जो भी resources होते हैं they are the national resources of a particular nation. ठीक है, तो आप पूछेंगे नॉटिकल माइल होता है क्या है? 1 nautical mile एक्चुअली हम मरीन डिस्टेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉटिकल माइल. 1 nautical mile is more than a mile, it is around 1852 meters. ठीक है, so 1 nautical mile is 1852 meters, and this unit of measurement is based on the circumference of earth. ठीक है, it is based on the circumference of earth. So हम इस डेप्थ में नहीं जाएंगे, इस डिटेल में नहीं जाएंगे. इस टाइम आप याद रखेंगे all the resources within the 12 nautical miles from the baseline, within the territorial waters of a nation and within the geographical borders of a nation are the national resources. In fact, all other resources which are acquired in the name of a nation are also called as national resources. For example, if the government of India is acquiring a resource somewhere else in the world that is not within the political boundary of India, that's not within the territorial waters of India, that resource can also be termed as a national resource because it has been acquired in the name of the nation. ठीक है, so उसके बाद हम आगे चलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे. इंटरनेशनल रिसोर्सेज एज द नेम इंडिकेट्स दे आर द resources which are shared by many nations, and the use of these resources, because they do not belong to a particular nation, the use of these resources, they are governed by international institutions and international laws. ठीक है, for example, the resources which are present in the open seas beyond the exclusive economic zone. ठीक है, आप पूछेंगे सर exclusive economic zone होता क्या है? Say this is one country, this other country and this is a third country. So मैंने आपको पहले बताया था that in the territorial waters जो भी resources पाए जाते हैं they are the national resources. ठीक है, so beyond territorial waters we have some other waters, जैसे हम कहते हैं contiguous waters. तो उसके बाद up to 200 nautical miles जो waters आते हैं इनको हम कहते हैं exclusive economic zone. ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो वाटर्स होते हैं विच आर द ओपन वाटर्स. ठीक है, द ओपन वाटर्स विच डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, और इन ओपन वाटर्स में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं दे आर टर्म्ड एज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज दे आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉज. इसके अलावा हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, बिकॉज एटमॉस्फेयर इट बिलोंग्स टू ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सो एटमॉस्फेयर इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स. ऐसे हम बात करेंगे आउटर स्पेस में. आउटर स्पेस में हम अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं. द यूज ऑफ आउटर स्पेस इट इज गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉज एंड इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स. ऐसे हम एंटार्क्टिका की बात करेंगे. एंटार्क्टिका
because Antarctica is mostly used, the land of Antarctica has been mostly used for research purpose. So many nations, they do research in Antarctica. So Antarctica is an international resource and it is governed by the Antarctica Treaty System, you know that. तो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के बारे में. सो द यूज ऑफ अंटार्कटिका इज गवर्न बाय अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. सो इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स. इवन द साइबर स्पेस, जो हम इंटरनेट चलाते हैं, वी यूज द इंटरनेट, सो इट इज द साइबर स्पेस एंड इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स. सो हम इंटरनेशनल रिसोर्स को कभी कभी ग्लोबल कॉमन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द कॉमन रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय ऑल द पीपल ग्लोबली. ठीक है, I hope आपको ये समझ आया होगा that the resources on the basis of ownership can be classified as individual resources, community resources, national and international resources. उसके बाद हम आगे चलेंगे on the basis of stage of development. Very important, on the basis of stage of development, the resources can be classified as number 1, developed resources. ये developed resources होते क्या हैं? They are the actual resources. हम actually resource सिर्फ developed resource को ही बोलते हैं. तो डेवलप्ड रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स होता क्या है? ये एक ऐसा रिसोर्स है विच हैव बीन सर्वेड, जिसकी हमने सर्वे भी किया है, जिसकी हमें क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज इट. ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग इट इन प्रेजेंट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, हम बात करेंगे मुंबई हाई फील्ड्स में. हमें पता है कि मुंबई हाई फील्ड्स में वी हैव पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स. हमने ऐसे डिपॉजिट्स को सर्वे किया, उसके बाद हमने इनकी क्वांटिटी देखी, इनकी क्वालिटी देखी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, वी ड्रिल्ड आउट दीज थिंग्स. ठीक है, और हमने इनको एक्चुअली ऑब्टेन किया फ्रॉम विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ और हमने इनको यूज किया. सो दे आर द डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज. ठीक है, सो डेवलप्ड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जो हमें पता है कि रिसोर्स है, हमने इसको यूज किया, हमने सर्वे, क्वांटिफाई और क्वालिफाई किया, उसके बाद through proper technology we have used it, so it is a developed resource. so developed resource ही होता है. so उसके बाद है potential resource. potential resource एक ऐसा resource होता है, we know that the resource is there but we do not have the proper technology. हमने इसको सर्वे भी नहीं किया है, क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है और क्वालिटी भी नहीं पता है. ठीक है, सो द रिसोर्सेज दे आर नोन टू एग्जिस्ट बट वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड देम सो फार. हमने इनको प्रेजेंट में यूज नहीं किया है, मे बी हम फ्यूचर में इनको यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा पेट्रोलियम की. से आई नो अ पर्टिकुलर एरिया वायर वी फाइंड द सेडिमेंट्री रॉक्स, और हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे पेट्रोलियम हो सकता है. ठीक है, सो ये पेट्रोलियम एक पोटेंशियल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि हमने अभी इसका सर्वे भी नहीं किया, हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है पेट्रोलियम की, क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, हमें नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कैसी है इस पेट्रोलियम की, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है या हमने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की है टू ड्रिल इट आउट, एंड हमने इसको फाइनली यूज भी नहीं किया है. सो दीज रिसोर्सेज दे आर ओनली नोन टू एग्जिस्ट बट वी हैव नॉट सर्वेड, क्वालिफाइड, क्वांटिफाइड देम और made them available for use. So such resources are the potential resources. उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक रिसोर्स की. द रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने सर्वे किया है. दैट इज वी नो दैट द रिसोर्सेज एग्जिस्ट देयर एंड वी हैव सर्वेड देम. ठीक है, हमें पता है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज देम. ठीक है, मीन्स हम प्रेजेंट टाइम में इनको सिर्फ इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव द appropriate technology. For example, in a water molecule we have the atoms of hydrogen and oxygen, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This hydrogen atom, we know that it can be very useful in the chemical reactions, in the nuclear reactions actually. We have known the nuclear fission and nuclear fusion. So the hydrogen atoms, they can be very useful in these nuclear reactions, and but we do not have the appropriate technology to obtain hydrogen from water molecules and then use it. So this becomes a stock resource. उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व रिसोर्स की. रिजर्व रिसोर्स पार्ट होता है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स का. ठीक है, मीन्स रिजर्व रिसोर्स इज अ डेवलप्ड रिसोर्स, लेकिन हमने इसको अभी प्रेजेंटली यूज नहीं किया है, which has not been used at present and can be developed profitably in future only.
विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स रिजर्व ऐसा रिसोर्स है हमने इसको सर्वे भी किया है, हमने इसकी क्वालिटी भी देखी है, हमने इसकी क्वांटिटी भी देखी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट हम अभी इस रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी विल यूज दिस रिसोर्स इन फ्यूचर। इसको हम रिजर्व कहते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स विच वी हैव केप्ट रिजर्व फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिवर विच इज फ्लोइंग, ठीक है, वी हैव अ हिमालयन रिवर, वो फ्लो हो रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमने इसकी क्वालिटी क्वांटिटी और हमने इसको सर्वे भी किया है, और हम इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी यूज नहीं किया है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वी थिंक दैट वी विल यूज इट इन फ्यूचर, सो इट बिकम्स अ रिजर्व। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज। यूबिक्विटस मीन्स विच इज found everywhere. For example, air, light and water, they are present everywhere. So these become the ubiquitous resources. उसके बाद हम localized resource की बात करेंगे which are found in localized or certain parts of the world. For example, हमारे gold mines हैं, they are, और हमारे coal mines हैं, they are present at particular locations of the world, so they become the localized mine resources. For example,